Interior design is not just about beautiful spaces, it's about patience, mistakes, materials, people, and years of showing up quietly before anyone notice your work. My guest today is someone who has seen the Indian design industry evolve from the early 2000s to where it is today. Today I'm sitting with the designer Karan Sethi, founder of Cube Designs. We talk about his first project, early struggle, design philosophy, materials, and social media, and a lot more today. Hi Karan, how are you? Hi Atul, how are you? Very good, sir. Finally, we are meeting. Yes, We yes, were yes. planning this from long time. Yeah, I know. You delayed it so much because you are always so busy. Yeah, I tried my best to do it as soon as possible. This is my first podcast with you. I know. Thank you so much for this. Thank you. Really, thank you for this. I just want to know how it all started. It all started as in design. Design, your journey, your interior journey, your design, your furniture lines, everything. Tell me from the beginning. So when I started my work in 2004. Oh, wow. So at that time, most of the students and most of the my fellow friends and everyone was majorly into fashion. Okay. Ki, let's go to this fashion college and do fashion, and all the girls, all the boys, they want to get into fashion. Most of the people. 2004. 2004. But I thought design, interior design was what I was in my mind because I love traveling, travel karta tha, yahan jata tha. So we used to love and always, fashion was not something which I was too much interested in. Okay. And the very few colleges also and very few people also who was trying to pursue interior design. So I thought, yes, this is going to be a good line. But in 2004, I did my interiors from Hoskas. It's a college, JD Institute of Fashion Technology. From Delhi. From there, from Delhi, yes. Then doing that, I thought I just got a chance to visit China at that time. Okay. In 2004, I think it was too early stage. Yes. They were not even, unko yes or no bhi nahi pata tha us time pe. Because language barrier itna zyada tha. And I went there, then I thought, let's import furniture. So And China was modern from that time. It was exactly same जैसा भी है. In 2004 also. Yes. So it was way ahead of time. So I went there, but the language was a massive barrier there. तो उनको कुछ नहीं पता था. कई बार तो लोग मेरे को देख के फोटो खिंचवाते थे रोड पे कि ये कौन है. कौन है? So that time and language ऐसा कहीं जाना होता था, टैक्सीज वालों को कुछ नहीं आता था, इंटरप्रेटर्स को भी बहुत लिमिटेड इंग्लिश आती थी. So we started at that time. I started importing furniture. I made four retail outlets in Delhi, different parts of Delhi. Then I thought retail was something which it's good for making money at times. Retail, of course, it's okay. How many years you did that? I did it for like good 10 years. 10 years, yeah. Wow. But and middle of that, in around 2011, I thought, yeah, I got my first interior project. So one of my friend told me, yeah, Karan, let's do this office. And you can do this and you can manage all of that. And yeah, let's try this. I did that and it was an experience for me. I didn't make any money out of it, but I realized that this is what is good because the end product was so good that I was very happy from inside. Then I realized, yeah, ये ज़्यादा अच्छा है instead of just selling few pieces of furniture. जो final outcome है. हाँ, and managing a retail outlet, what I felt was this is what I really enjoy. Then I started doing those projects. 2019, I got my first project, which was a house and villa project. Okay. That also went for 2 years because you know houses. Yes, of course. So 2 years, it went for 2 years. Then we delivered that. That went very well. Came out really pretty, and the client was very happy. I thought, yeah, this is what kind of feedback, and this gave me a kind of kick actually that all need कि यार ये करना life में. तब तक मैं retail से almost 2015-14 तक out हो चुका था. I was totally into commercial projects. आपके पास कोई पिक्चर है उस प्रोजेक्ट की जो सबसे पहले किया था? I'll give you. हाँ, तो we'll add these pictures. I'll try to find because it's 2019, but I'll try to find. So उस time मैं photos भी ज़्यादा नहीं खींचता था. It was not social media इतना active नहीं होता था. We were happy with what we were doing. Then once we started delivering, we started getting a lot of projects. Okay. Showing one, आप एक चीज को showcase करते हो, you get a lot of projects. From there, I thought let's start doing this. Interior design. Interior design completely. We started from COVID आ गया बीच में एक डेढ़ साल challenges भी थे. But then we started doing design. जब design करना शुरू करा, then we really thought यार ये इतने सारे contracts हम लोग scale up कैसे करेंगे? How will we grow? How will we grow as a personality? Let's only focus on interior designs, not anything else, not construction, not other parts of contracting, not other parts of, जैसे for example अगर आपको turnkey projects मिलते हैं, I used to do a lot of turnkey projects also. Okay. कि design करा और बना दिया. But that was turnkey थोड़ा सा समझाएंगे आप for them. I know what is turnkey, but for the people, yeah. Turnkey is something that you design something and you implement that.
Okay. and for the client you are the only person who is actually responsible for the design and the execution of it. क्लाइंट आपके साथ डील कर रहा है, उसको मेरे साथ किसी डील से कर रहा है, कोई उसको मतलब कोई मतलब नहीं है. बट व्हाट आई रियलाइज वेरी सून दैट इट विल नॉट हेल्प मी स्केल अप. Okay. मतलब मैं 5 कर सकता हूँ, 10 कर सकता हूँ, बिकॉज मेरा हमेशा से टारगेट रहा है, आई डोंट वांट टू गेट द टॉप ऑफ द 1.1% people. I want to reach to the center level, I mean upper middle section of the society, which so that I can make luxury more affordable for them let's and say executable. top 5%. टॉप 5%. सो उससे क्या होता है कि मैं कोई भी फैंसी प्रोजेक्ट बनाऊंगा, उसको डिलीवर करने के लिए अगर उसका अननेसेसरली कोई एक्सॉर्बिडेंटली हाई प्राइस होगा तो वो क्लाइंट कराएगा नहीं. जब वो क्लाइंट नहीं कराएगा तो इवेंचुअली मेरा डिजाइन बनेगा ही नहीं मेरा, राइट. तो मेरा डिजाइन नहीं एग्जीक्यूट ही नहीं होगा. लेट्स से मेरे को ये वॉल बनानी है और मेरे को किसी ने बजट दे दिया 1 करोड़ रुपए का कि ये बना लो. सो क्लाइंट ने रिजेक्ट कर दिया कि मेरे को इस वॉल पे 1 करोड़ रुपए नहीं खर्च करना. तो दैट इज व्हाट आई थॉट, लेट्स गो टू द वेंडर and get the best vendors on board and which will help you reach that exactly 1 करोड़ रुपए की चीज in 10 लाख रुपीस और 15 लाख रुपीस. हाँ, और आपका डिजाइन भी कंप्लीट हो जाएगा उसमें. तो मेरा डिजाइन अचीव हो जाता है. मैं जो 3D में बना रहा हूँ, जो मैं 2D में जो मैं विजुलाइज कर रहा हूँ, जो मैं कॉन्ट्रैक्टर से डिस्कस करूंगा, वो सारी पूरी जो मेहनत होती है ना, कई बार जाके बिल्कुल एंड हो जाती है बिकॉज क्लाइंट से दिस इज गोइंग आउट ऑफ माय बजट, देयर इज नो पॉइंट स्पेंडिंग व्हाट यू मेकिंग, राइट. सो व्हाट आई थॉट, लेट्स रिसर्च ऑन वेंडर्स आल्सो. So I somehow got lucky in getting lot of very good vendors from the industry, different parts all of over India. From all over India, be it Kolkata, be it Ahmedabad, be it Delhi, South India also, lot of different vendors. So reach मिल गई. जैसे वो reach मिली, contractors मिल गए, अच्छे projects, आप you will do good work. अपने आप do people who really want to have fancy, good design, luxury homes, they'll contact you themselves. So market करने की जरूरत नहीं पड़ी. So that then I decide I'll do just जो दिल्ली में थोड़े बहुत टर्न की प्रोजेक्ट्स होंगे, मैं जो रीच में होंगे उनको I will handle, but majorly my focus should be only on interior design, nothing else. Completely. When your focus is straight, अगर मेरे को आगे कोई जन आके बोलेगा ना कि करण ये 50 विला का प्रोजेक्ट है, ये बना दे, तो मैं बोलूंगा नहीं, डिजाइन करा ले. डिजाइन करवा दो मुझसे बस. मैं बनाऊंगा नहीं. मे बी दैट इज अट्रैक्टिंग लॉट ऑफ मनी, बट मेरा वो फोकस ही नहीं है. अगर मैंने अपना वो फोकस आउट कर दिया, तो मेरा फोकस अभी क्या है, स्केल अप करके वन ऑफ you should have the best talent growing under you, and imagine a company which is only consultant company and having best talent from the industry under one roof. Wow. So that is the vision, and if I focus on that, abhi right now we are doing multiple projects across India. I know we are now in almost 17 cities in India. Wow. So just because of that philosophy, that focus on just one design, interior design only. But that is also a very good scale. You're working in a 17 cities. That is a good scale, बस managing challenges होते हैं, वो शुरू में आ रहे थे. जैसे first project I took outside Delhi was Dehradun. So very good villa that we are doing. So Dehradun पे कैसे काम होगा दिल्ली से? Immediately चंडीगढ़ का एक प्रोजेक्ट मिला, again very fancy project. So होता क्या था कि पहले स्टार्टिंग में टीथिंग इश्यूज आते हैं कि हाउ विल यू मैनेज, बट धीरे धीरे समझ आया दिस इज द वे टू हैंडल इट. एंड वी यू हैव लोकल वेंडर्स, लोकल पीपल, लोकल वेंडर से भी एक ट्यूनिंग हो जाती है, प्लस क्लाइंट के पास एक लोकल कॉन्ट्रैक्टर होता है जिससे हमें मैनेज करना इजी हो गया. सो आई डोंट वांट टू गेट इनटू द कंस्ट्रक्शन. डिजाइन ऐसा करो कि क्लाइंट को सिर्फ आपको डिजाइन की जरूरत पड़े. ओके. सो दैट फिलॉसफी आई वांट टू वर्क ऑन. ठीक है. व्हेन यू टॉक अबाउट वेंडर्स, okay, I will not call them vendor, they are artists. You told me ki okay, let's do podcast here. This is a beautiful painting, this is a beautiful masterpiece, I will call it. How you get it done, how this idea came, and this is actually very very pretty. So this is the heart of my house actually. So there was an artist. I called him. मैं यार मेरे को ऐसा कुछ चाहिए. I gave him the brief that this is the black area of the house and I wanted something black and to play with gold. I spoke to my vastu person also. I am a vastu believer. So कितने peacocks चाहिए या कितने birds चाहिए इसमें, that was all mentioned. Which color we have to play was all approved by her. Okay. So I called him, ना मेरा ये विजन है, ऐसा बना दे. एक छोटा सा स्केच करके उसको एक आइडिया दिया. This was the theme that I really wanted to be very pretty looking and ऐसा. So then I told him, can you do it in any different material which is not easy to make for any vendor. This is called Zardozi. Zardozi, yes. So this is more of a gold. If you see the shimmer and the details, होता क्या, इस पे काम करना बहुत मुश्किल होता है. Zardozi पे. हाँ, इस पे बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग निकलता है. This is the metal thread, right? No, this is not a metal. It's again kind of a fabric only. Okay. But it's थोड़ा golden blackish rustic look देता है. And
उसकी 3 डॉटर्स हैं, तीनों डॉटर्स ने और उसने मिलकर ये पूरा आर्ट वर्क बनाया ओवर द पीरियड ऑफ 8 months. 8 months, that's long. It took a lot of time, lot of effort. जब तक घर बनना स्टार्ट हुआ था तो पहले विजन में उसको ही दे दिया, 8-10 महीने 1 साल घर बनने में लगा, तब तक उसने पेंटिंग बनाई. पेंटिंग बनाने. So but that was something which I really, मेरे को, I mean when I enter this house, this is the first thing you see in my house and this is really what I wanted. So then I thought let's try using different materials. उसके लिए different vendors चाहिए. मटेरियल कहाँ से आएगा? अगर आपको आज ब्रास से प्ले करना है, ब्रास का वेंडर आपको अच्छा नहीं मिलेगा, तो आप रिजल्ट कैसे दोगे? और ब्रास में बहुत क्वालिटीज होती हैं. ब्रास में क्वालिटीज होती हैं, कारीगर के हाथ का काम होता है. आप जो कारीगर जो चीज करता है वो उसी में अच्छा होता है. ऐसा नहीं होता कि आप किसी और कारीगर को बोलो कि ये डिजाइन है, इसको बना ले, लेट्स कंट्रोल कर लेंगे, कॉस्ट कंट्रोल कर लेंगे, चीज कर लेंगे, वो फिनिशिंग नहीं दे पाएगा इन कंपैरिजन टू द पर्सन हु हैज बीन डूइंग इट फॉर एजेस. सो आई रियलाइज कि यार ये कारीगर है, ये कश्मीर से लो, ये मुरादाबाद से लो, ये कोलकाता जाओ, ये काम कराना है उदयपुर जाओ. सो वो ऐसे रीच मिल गई कि होता गया एंड वी स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग. नाउ व्हाट हैपेंस इफ वी आर डिजाइनिंग समथिंग, मेरी टीम डिजाइन करते टाइम ना, दे डोंट, जो भी हमारी डिजाइन टीम है उनको इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है कि हम लोग जो 3D में बनाएंगे ना या 2D में बनाएंगे, जो अप्रूवल सर से मिलेगा वो एग्जीक्यूट सर करा देंगे. वेंडर्स हैं हमारे पास इमीडिएटली डिजाइन को एग्जीक्यूट करने वाले बहुत अच्छे वेंडर्स हैं. नहीं, ये मैंने भी रिसेंटली नोटिस किया है कि जो आप 3D बनाते हो आप एग्जैक्टली वैसा अचीव नहीं कर पाते हो. बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जो उस चीज़ को अचीव करते हैं. वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि जब हम 3D बनाते हैं हम अपने सारे विजन डालते हैं, जब उसके बाद जो उसकी कॉस्टिंग होती है वो कई बार ओवरबोर्ड चली जाती है. एंड क्लाइंट सेज यार आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट दैट काइंड ऑफ मनी इन दिस एरिया. सो उसको अगर आपने कंट्रोल कर लिया, दैट इज द ब्रिज ना. आपने डिजाइन करा, आपने डिजाइन करा, उसने बोला यार कि कारण इसको अचीव कैसे करेंगे, ये मेरी कॉस्ट में भी आना चाहिए, बी इट उसके बजट ऑलरेडी अच्छा है, लेकिन फिर भी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ वैल्यू तो लगनी चाहिए चीज की. ऐसा तो नहीं है इसकी कोई भी वैल्यू बोल देंगे तो क्लाइंट दे देगा. सो व्हेन यू ब्रिज दैट गैप, you will always deliver the best. and उसी की वजह से हमारे 3Ds 99% हम लोग अचीव कर लेते हैं until we have any confusion or we improvise it. या तो हम improvise करेंगे, अगर हमें कोई better चीज मिल गई while executing तो हम उसको improvise कर लेंगे, नहीं तो we will try to manage and completely. Another thing I want to ask, you said Vastu. I'm also a big believer in Vastu. How many people as a market whole people believe in Vastu? Let's talk about different part of India. North, I'm sure 100%. Everywhere it's 100%. Okay. Every house, what we are doing, most of the, देखो अपार्टमेंट्स में हम लोग अचीव नहीं कर पाते हैं because there are restrictions in apartment of changing the walls and some areas. जो वॉशरूम जहाँ बना होता है, संकल्स बने होते नहीं कर पाते. बट घर के अंदर हम लोग 99.9% लोग वास्तु फॉलो करते ही करते हैं. हमारी टीम वास्तु फॉलो करती है, हम थर्ड पार्टी वास्तु वालों के साथ डील करते हैं बिकॉज वास्तु. अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने किसी का घर बनाया, ही टोल्ड मी सर मैं तो किसी को मानता नहीं हूँ, मेरे को तो मेरा जैसे एक घर मैंने लिया है, इसको रेनोवेट कराना है, इसको बनाना है, अच्छा से बना देंगे. आई डोंट नॉट अ वेरी बिग बिलीवर ऑफ वास्तु. आई जस्ट बिलीव दिस गुरुजी एंड ये हमारे वो हैं गुरु, मैं इन्हीं को मानता हूँ. मैंने ठीक है, इट्स ओके, अप टू यू. वी स्टार्टेड डूइंग द प्रोजेक्ट. वो पहले हम उसको रेनोवेट कर रहे थे या चीज़ें कर रहे थे. विद इन आई थिंक 2 months उसका फोन आया कि यार एक बारी ना वो गुरुजी आए हुए हैं तो उनको एक बारी दिखाना है मेरे को. ओके. सो गुरुजी ने बाहर खड़े होकर बोला मैं इस घर में वास्तु दोष है, मैं नहीं जाऊंगा. गुरुजी नहीं बोल दिया. गुरुजी ने बोला. तो व्हाटएवर, देन वी एंटर्ड इनसाइड, ही डिड ऑल द एक्सरसाइज कि इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, सब कुछ तोड़ के लेफ्ट राइट करके इधर से उधर करके सारा जितना भी वो पैसा लगाया था उस टाइम पे, इट वेंट टू जीरो. Then I told all my apartment or home? It's a house, डुप्ले घर था. डुप्ले घर. हाँ. So वो सारा चेंज हो गया. ओल्ड हाउस किसी ने लिया था, उसको रिवैम्प करके नया बना रहा था. So पैसा भी गया और प्लस वी रियलाइज दैट लॉट ऑफ, जब आप घर बना रहे हो तो आप अपने कजन से बात करते हो, बड़े में किसी से बात करते हो, सबके अपने थॉट्स होते हैं. आप कई बार एक्साइटमेंट में अपने किसी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को लेके भी जाते हो घर पे जो बन रहा होता है. तो वो देखने आते हो, सबके अपने थॉट्स होते हैं, सबने घर बनवाए होते हैं, तो बोलते हैं यार ये तूने ये गलत रख दिया, ये सीट ऐसे नहीं होनी चाहिए, ये बेड ऐसे नहीं होना चाहिए. सो इवेंचुअली वो माइंड में आपको सबकॉन्शियसली रजिस्टर हो जाता है. एंड फैमिली में, घर में, काम में कभी भी थोड़ा सा भी कुछ वैसे ही लॉस हो जाए तो ऐसा लगता है यार ये इसने बोला था इस वजह से हुआ है. सो इट्स बेटर व्हेन यू आर मेकिंग इट फ्रॉम स्क्रैच. आई टू टेल ऑल माय क्लाइंट्स लेट्स फॉलो इट नाइसली. एंड अगर बिलीव कर रहे हो तो पूरा करो, नहीं कर रहे हो तो भी थोड़ा कर लो. हाँ, थोड़ा सा बिलीव कर लो. थोड़ा सा बिलीव कर लो. So let's talk about. I'm not looking too much into these questions. Your design philosophy, then your favorite colors,
I seen your house in black. A lot of people don't do black. I love black. I know some people they love black, but Indian client. Okay, first thing is your design philosophy. Second thing, what challenge you face in designs, especially with client side. हाँ, so I'll talk about challenges. So challenges मेरे को वहाँ face होता है जब मेरे को कोई जना कहता है simple घर बना दो, subtle घर बना दो. So that is but the challenge I feel कि यार You are maximalism, right? 100%. I am brutal maximalism. हाँ, तो you have to reject that. मेरे को चाहिए कि यार let's play with lot of materials. Maybe on the same color lines. I would not like to use मेरे को colors ऐसे नहीं चाहिए कि मैंने एक color डाला उससे दूसरा color mix कर दिया. I play with अभी if you see this part of the house, the whole house is not black. It's just this area. This area is black, yeah. And this approved by Vastu. Then only I got it done. Then again इसमें हमने बहुत सारा colors use नहीं करे हैं. The subtle black के साथ ही combination रखा. Yes, exactly. So that when you realize that कि dark color से ऐसा नहीं होता कि dark color एक areas होते हैं entertainment area होता है घर का जो dark रखते हैं हम लोग usually. So client is also very happy and result has also always came out nice. अब बाकी कई लोग कहते हैं subtle बना दो तो we always use beige and other colors which are new in the आजकल हम लोग जैसे use कर रहे हैं. Then but उससे क्या होता है उसमें आप material से play करना होता है बहुत ज़्यादा. So any color we use, but what I love to do it is use lot of different materials. Like अभी मेरा नया favorite है चांदी. Oh wow, okay. So चांदी का furniture, चांदी के दरवाजे, चांदी का कुछ paneling और again metal, brass. Brass is going to be my favorite in 2026. I'm going to use lot of it. And brass looks great in Indian homes. Yes. Very well connected with India. अगर मेरे को artwork बनाना मैं इसको पूरा brass में बनाऊंगा. Okay. Because I've done fabric, I've done marble. So now what next? ये थोड़ी ना मैं marble की अगर details डालता हूँ तो मैं अब जिंदगी भर marble की details डालता रहूँगा. So we have to innovate also. You know this guy Vikram Goyal? Yes, he is doing wonders. He's an amazing artist. Amazing artist. Yeah, he used to, I don't know how much he's doing now, but he used to be interior designer. Now completely into brass. Into art. He's like artist now. Yeah. He's completely artist, and he don't display his collection in India Art Fair. He don't display his collection in India Design. He display only in India Art Fair because he's looking for curators. It's coming right now, no? In February. Yes. Yeah, we are looking forward for new artists. See, अगर आप plain walls रख के अच्छा art लगा दो ना, that is also something. But बिल्कुल plain subtle homes मेरी choice नहीं है. I'm fine. People don't want very fancy houses. They want maintenance less houses. कि ज़्यादा maintenance ना हो. But I think this is what my personality is, and I think a lot of people are relating to what we are designing. And जब आप शॉपिंग करने जाते हो ना, तो जैसे फॉर एग्जांपल कपड़ों की शॉपिंग करने जाते हो, you know exactly कि कौन से डिजाइनर के कपड़े आपको पसंद आएंगे या कौन से शोरूम पे जाके आप अगर आप एक ब्रांड के कपड़े पहनते हो ना, आपको पता है यहाँ जाऊंगा मेरे को सारे कपड़े मिल जाएंगे. वो आपकी पर्सनालिटी है. आप दूसरे के पास कई लोग बिल्कुल सिंपल सेटल ऑफिस वेयर कपड़े पहनते हैं या फॉर्मल कपड़े पहनते हैं, वो उनको सूट करता है. तो पर्सनालिटी, आप अपनी पर्सनालिटी ऐसी बनाओ जो आपके साथ रिलेट करते होंगे, वो अपने आप आपके पास आ जाएंगे. Completely believe in that. And let's talk about your favorite colors. I added that time. Black and black and gold. Blue I love green, emerald green, jade green is something which is really which is attracting me these days. Gold obviously, or dull gold is brass gold, what I say. Brass gold type. Rustic gold is my favorite. These are I would love to play with these kind of things. Classical details with golden touch. This is what is. Okay. Anything, let's talk about your dream project. Okay. What you're doing, two projects. Let's talk about two projects. What you're doing right now. Whatever the project you can. You don't need to name the client or somebody. One project you're doing right now. What you want to do in future? Okay. Something extraordinary you can say. Like a manifestation. Something like that. Okay. So right now I'm doing a farmhouse. That farmhouse, they gave me a full hand कि Karan, you do whatever you want. That's the best thing to do, yeah. When you trust the designer. So at the same time, I was out in Portugal for my vacation, and I realized that they were playing with tiles a lot. छोटी-छोटी टाइल्स के साथ वो बाहर फसाड बना देते हैं. अब आप इंडियन होम्स में फसाड देखोगे नहीं टाइल से बना हुआ. टाइल से कभी नहीं. हैंड प्रिंटेड टाइल से बना हुआ. तो I went to tile museum specially to understand what are they doing, what are the challenges. Wow. अब I'll share that picture with you for this, and we have client gave me a full authority कि बना दे फसाड मेरा. And
it's called Azulis, white and blue. आपने देखा होगा, the brands are also using it. White color का background होता है, blue color से art करा होता है. That's I called think you Azulis. already show me the picture in last shoot. So that was the facade which turned out to be hand painted tiles. Then you have lot and lot of hand. मैंने artist को बुला के उसके ऊपर painting भी करवाई, बहुत चीजें निकल के आई ना. That came out so pretty that अगर आप उसके बाहर खड़े हो जाओ ना, and we have pool next to it and garden next to it, and imagine that facade. I mean, that's around 30 feet high and around 100 feet like this. And there must and be... that's a painting on the facade in tiles, in mosaic tiles. And we have to treat it well so that sunlight se kharab na ho. वो सब करा, and a lot of other things also which is coming out in that house. So that is what is turning very good for me right now at this And you know stage. what happened when you made these kind of things? So when sunlight reflect in a different day, I'll different take time you of the there day. one day. You will say, "Yeah, Karan, I have not seen anything like this in my life." I'll come Even with the I have not camera. seen, with the camera. I have even not seen anything like that. So that was an experiment which came out so nice that it's give me peace from inside. Wow. And then I think that's very important. Very important. So when you deliver something like this, which is straight out of your mind, उसके बाद client acceptance की कर दे. Imagine आप अपना घर बनाओगे, किसी को बोलो कि मेरे फसाड पे पेंटिंग कर दे. नहीं, बहुत मुश्किल होता है बोलना. मुश्किल होता है. So he gave me the authority की कर दे. And when we proposed it, we made the 3Ds and renders and everything. He's like, let's do it. It took almost 6 months to do the research and things कि कैसे बनेगी, टाइल फेड तो नहीं होगी, धूप में challenges तो नहीं आएंगे, डायरेक्ट सनलाइट में, पानी में खराब. So all that efforts been gone inside कि वो कैसे deliver करा. तो फिर That is also a lot of research. yeah, that, So when you use there the was a factory, material, there was factory in Morbi which helped me delivering this. Okay. Morbi is famous for tiles. हाँ, मोरबी फेमस होता है. तो उन्होंने बनाया छोटे छोटे इतने पीसेस को जोड़ जोड़ के पूरा. एक आर्टिस्ट ने पहले उसको एक, जैसे इस आर्टिस्ट ने बनाया वैसे उस आर्टिस्ट ने उसको पूरा एक पेपर पे बनाया, फिर मैंने उसको डिजिटलाइज कराया, फिर उसको टाइल्स पे प्रिंट करवाया, फिर उसके बाद हैंड वर्क करवाया. दैट वाज द एफर्ट व्हिच टर्न्ड आउट वेरी गुड फॉर मी. Okay. And now you talk about this project that You want to do something. So there is a project in Dubai that we started 6 months back. Okay. It's a villa. And for that again, client now How turned big is the villa? Let's talk about the scale around, also, it's size around also. 20,000 square feet. 20,000 square feet. Okay. The client now turned friend. He told me, he again gave me the full authority. Karan, बना जो तूने बनाना है. But you know, it's very difficult to achieve when somebody is giving you full authority. They completely trust you. I believe that. उन्होंने रेंडर में इतना सा भी चेंज नहीं कराया. अब मैं उनको फोन करके बोलता हूँ ना कि कारण सर मेरे को ये चीज चाहिए, या ये पत्थर चाहिए, या ये डिजाइन चाहिए, जैसे देखो ठीक लगे. बट एक आर्किटेक्ट के लिए और डिजाइनर के लिए बहुत बड़ी बात होती है जब So you have to create that command and aura also. And the perfection in work. Perfection in work. उसके बाद हमारे लिए अभी सबसे बड़ा जो मेरा टारगेट है, that is supplying everything from India to Dubai. Dubai. Wow. अगर वो, of course मैं सिर्फ डिजाइन कर रहा हूँ, बाकी हैंडलिंग वहाँ की कंपनी भी कर रही है और क्लाइंट भी कर रहा है. बट यहाँ से सारा इंडिया के डिफरेंट पार्ट से हम लोग सोर्स कर रहे हैं चीज़ों को, यहाँ पे बनवा रहे हैं. किसी प्रोडक्ट को कोटा भेज रहे हैं CNC करने के लिए, किसी पत्थर को यहाँ पे पॉलिश करवा रहे हैं. तो चीज़ें सारी यहाँ से कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम थिंग्स वी शिप फ्रॉम इंडिया और वहाँ पे हम लोग इंस्टॉल करें. अगर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी, ऑब्वियसली कंप्लीट होगा ही, कंप्लीट ही होगा, अगर नहीं बोलना. आई मीन अगर मतलब जल्दी हो जाएगा. जैसे ही जस्ट once that project is on the finishing stage, I am sure that's going to be one of a kind project in Dubai. Because वहाँ पे लेबर इश्यूज भी हैं, वहाँ पे कॉस्टिंग इश्यूज भी हैं, लाइफ ऑफ लिविंग कॉस्ट इतनी हाई है कि एक्सपेंसिव बहुत है. सो वंस आई मेक दैट ब्रिज कि ओके दिस इज अ डिजाइनर फ्रॉम इंडिया हु कैन गिव अस दिस काइंड ऑफ क्वालिटी वर्क एंड दिस काइंड ऑफ एंड ऑल्सो नॉट डिजाइन ही कैन अचीव. अगर आप वहाँ पे वाले डिजाइन दे दो मेरे वाले, वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे. अगर एग्जीक्यूट कर पाएंगे तो इतने एक्सॉर्बिडेंटली हाई प्राइस है कि उनको लगता है देयर इज नो पॉइंट स्पेंडिंग दैट काइंड ऑफ मनी इन अ हाउस. सो अगर वो अगर मैंने उसको 1/4 प्राइस पे इंडिया से शिप कर दिया मटेरियल को, ठीक है, वहां के लेबर हम लोग हायर करके काम करा लें. जैसे ही वो प्रोजेक्ट रेडी होगा, सो अंडरस्टैंड दैट एवरीवन, दुबई हैज लॉट ऑफ मनी, राइट? दे विल आस्क इंटरनेशनल मार्केट. वो गैप मैंने ब्रिज कर दिया, बी फ्रॉम इंडिया, बी फ्रॉम चाइना. अगर वो ब्रिज हो गया तो होगा क्या, बस उसके बाद देन यू कम ऑन बोर्ड, सोर्स मटेरियल्स. We have a local PMC team karao. So that is what I feel that those are 2026 will help me in this. And Dubai is a new Monaco.
Dubai is new Monaco. See, there are a lot of spenders in India also. But India में चीजें कहीं ना कहीं रिसर्च से आपको मिल जाती हैं, इकोनॉमिकल मिल जाती हैं, वो यहाँ पे ऑप्शंस बहुत हैं, वहाँ ऑप्शंस नहीं है. अगर है भी तो इतने एक्सपेंसिव है कि आपको वैल्यू नहीं लगती उसकी. अच्छा, ये 2 प्रोजेक्ट जो आपने बताया ये तो आपके ऑन गोइंग है. Let's manifest quickly something you want to do in future. Let's say hotel, let's say villa, let's say farmhouse, let's international project. Let's talk about yacht. Because I done project for somebody do a lot of yacht in London and UK. Okay, I shot house in Delhi. So something like that. What you want to do? Let's talk about your dream, not the ongoing so my project. first thing that came to my mind. So I have 2 friends who are into charter business. Oh. So I wish them, they're listening to this, Yes. I wish them to give me a charter to do the design from inside. So charter का interior design कर ले. That's what I want to know. Yeah. So one is that. Then second, I think again a Goa project that we are doing. It's right on Res Magos, right on the sea. Okay. That is what we are going to be most Instagrammable project. What I feel, a lot of different bars, but small house, Okay. Airbnb type, and you have a nice balcony, nice garden to it, and right on the sea. Wow. So that is also something we are trying to do very differently and very nice. So I think ऐसा उसके साथ भी मैं प्ले करूँगा. इसको मे बी लास्ट वाले में आप डाल सकते हो ऑनगोइंग के अंदर. Okay, what's the secret behind your Instagram viral things? मैं बहुत लोगों से मिला हूँ और it's very difficult to achieve when you are a man, you are an interior designer, your reach is very less because industry is very small. Yeah. उसके बाद भी आप एक कंस्ट्रक्शन साइट पर खड़े होते हो और एक सीढ़ी के बारे में बता रहे होते हो या एक ब्रोकन वॉल के बारे में यू टॉकिंग अबाउट सम मटेरियल्स देयर. वो रील इतनी वायरल कैसे होती हैं? एक्सीडेंटल तो नहीं है, ये एक्सीडेंटल है या फिर इसकी कुछ प्लानिंग करी है आपने? नहीं. So I'll tell you a secret. हाँ. So there is no social media team in my office. Okay, I know one girl walk around with the camera. That's all. It's not like that. जो भी मेरे साथ होता है, हाँ, जो भी आपके be it any side visit पे जब मैं जाता हूँ, तो मैं I try to keep it very organic. Okay. कि so that people, I think I just got a client and वो आए मेरे से मिलने के लिए. We did some discussion of the project. She told me कि करण ऐसा लगी था मैं तेरे से पहली बार ही मिल रही हूँ. हाँ, because I already know you so well and you are exactly same as a person as अब मैंने जैसे सोचा. So वो एक comfort level उनको लगता है कि and plus what my base idea was, see I don't have anything to sell. मैं ना तो मैं सोफा बनाता हूँ, ना मैं center table बनाता हूँ, ना, so there is nothing to sell for me. It is just that I feel that you should कम्युनिटी को आपको देना चाहिए कि आप जैसी चीजें बना रहे हो वो कैसे बन रही हैं, क्या उसके पीछे की मेहनत है. If they'll understand that, they will understand you. I felt that I don't have anything to sell. So you don't make furniture, you're not into I'm not making anything. So but this is called indirect marketing कि client को लग रहा है कि करण को सब आता है. हाँ. So that is the pitching point कि ठीक है, I know everything. He's a designer. He is a designer and he can achieve what he is designing. Okay. ये ऐसे सिर्फ बात नहीं कर रहा है कि सिर्फ इसने डिजाइन बनाया और ये बन गया. He knows what he knows his business well. So that is what I thought कि ये करना चाहिए. Plus there is an example, जब मैं started my work, मेरे को आर्किटेक्चर का प्रोजेक्ट मिल रहा था. आई एम नॉट एन आर्किटेक्ट, बट मैं अपने फेलो एक आर्किटेक्ट को लेके गया. ही वाज अ सीनियर आर्किटेक्ट नाउ, ही इज अ सीनियर आर्किटेक्ट नाउ. सो मैं उसको लेके गया. मैंने यार लेट्स गेट दिस प्रोजेक्ट एंड डिजाइन मैं कर लूंगा और एग्जीक्यूट भी मैं कर लूंगा, आप आर्किटेक्चर कर लेना. क्लाइंट ने ये बोला था पूरी बिल्डिंग आप ही को बनानी है. सो आई वेंट विद हिम. क्लाइंट के साथ मीटिंग में ना क्लाइंट ने 2-3 क्वेश्चंस पूछे और उसने जवाब ये दिया कि यार वी विल डू इट, इट्स आवर बिजनेस, आई नो, आई विल अचीव इट. तो मैं बाहर आया, मैंने उससे पूछा, मैंने तूने क्लाइंट को क्लियरली उसका सॉल्यूशन देता ना. उसने 2-3 चैलेंजेस पूछे, उसका सॉल्यूशन देता. कहता है मेरा बिजनेस में उसके सीक्रेट्स क्यों बताऊं? एंड यू नोटिस दैट मैं उसके सीक्रेट्स क्यों बताऊं मेरे बिजनेस के? मैंने बोला यार ये तो बड़ी वियर्ड बात है. प्रोजेक्ट हमें नहीं मिला, नहीं मिला वो एक अलग बात है. बट आई रियलाइज बट व्हाई वाज ही नॉट कंफर्टेबल शेयरिंग द सीक्रेट? इट्स नॉट अ सीक्रेट. ठीक है, जो वो डिजाइन कर रहा है, वो बना रहा है, कैसे करेगा. अब मैंने वो सब दिखाना शुरू करा कि ये चीज ऐसे बनती है, ऐसे बनती है. एंड लोगों को ये समझ आया. कई लोग मैं जब ट्रैवल करता हूँ मेरे को आते हैं मिलने के लिए कि सर वी नो यू एंड हमने अपना घर आपकी वीडियोस देख के बना लिया. तो मेरे को ये चीज सीखने को मिली. आप इतनी इनोवेशन चीजें कर रहे हैं, हमने ये चीज यहाँ देखी थी, तो वेरी इंस्पायरिंग फॉर अस. इट्स वेरी इंस्पायरिंग एक्चुअली. सो कई लोग कहते हैं यार तेरे को नहीं लगता तेरा घर ये जो चीजें दे रहा है वो तो कॉपी हो जाएंगी? मैंने यार द फिलॉसफी इज हियर दैट कॉपी हो जाएगी तो अंडरस्टैंड दैट समवनस कॉपीइंग दिस आर्ट, लेट्स से. सो द फर्स्ट दिस इज डिलीवर्ड बाय मी, राइट? सो इसको कॉपी कोई करेगा तो मास्टरपीस तो एक ही रहेगा ना. कॉपी करते रहो, और कॉपी करने से बेटर है मेरे लिए कि एटलीस्ट दे आर कॉपिंग मी.
So I don't feel 1% की अगर की कोई चीज किसी को इंस्पायर कर रही है और वो उसको यूज कर रहा है, that is a good point and proud point for me कि मेरे को कोई चीज, मैं किसी को कोई चीज इंस्पायर कर पा रहा हूँ। नहीं, इसमें क्या होता है, नाइकी, एडिडास, इफ यू नोटिस, वो कॉपी को बोलते हैं कर लो, वो कॉपी को बोलते हैं कर लो, दे नेवर ट्राई टू स्टॉप देम, दे डोंट डू, अदरवाइज वो चाहे तो 1 मिनट में सब बंद करवा सकते हैं। वो कहते हैं कि अगर नाइकी की कॉपी का शूज बिक रहा है, सो टेक्निकली दैट गाय इज नॉट अ नाइकी कस्टमर। यस एग्जैक्टली दैट, जो क्लाइंट मेरे वीडियो देख के खुद बनवा लेगा, वो मेरा क्लाइंट नहीं है, वो आपका क्लाइंट है ही नहीं, वो मेरा क्लाइंट नहीं है, बट एटलीस्ट इट्स हेल्पिंग समवन, सो आई एम प्राउड ऑफ इट कि यार एटलीस्ट मेरी कोई चीज, मैं किसी के एक कुछ इमेज देखता हूँ, उससे इंस्पायर होकर कोई चीज अपने डिजाइन में डालता हूँ, सो दैट पर्सन इज इंस्पायरिंग मी। So I am happy that he is inspiring the world and I am taking something out of it. अगर मैं भी इंस्पायर करूंगा तो I am giving back to the community that inspiration. That's give me a different kick. That's a good thought, very good. तो मेरे को see, और आपकी चीज को कोई जना बोले यार अतुल, this is what you have done and I want to do what exactly Atul is doing. So you will eventually feel proud यार, of course, मेरे को देख रहा है, recognition मिल रहा है, inspiration दे रहा हूँ, so that is something else inside. No, people like, I do multiple lighting. I try to shoot a lot of maximalism. I have a style of shooting that. I love busy spaces. So people try to copy also. If try to do also, I feel happy. I feel happy. There's nothing wrong in that. There's nothing wrong. Inspiration नहीं देंगे तो next generation, हमारे से जिसने काम कराना है, हमारा TG तो वही है. I used to be inspired by a lot of senior photographers. अभी मुझसे कोई inspire हो रहा है तो it's a good thing. There's nothing wrong in that. There's nothing wrong. ये ऐसा ही होना चाहिए. And that helped me. I think that Instagram went viral with lot of things. बहुत वीडियोस, बहुत सारे टचवुड, बहुत सारे लोग मेरे को फॉलो करते हैं, इंस्टाग्राम पे करते हैं। वो उसका रीजन यही है कि मैं बहुत ऑनेस्टली उस चीज को दिखा देता हूँ। इवन वन ऑफ माय कलीग इन माय ऑफिस, शी टोल्ड मी कि सर यू आर नॉट सेलिंग एनीथिंग, दैट्स व्हाई द वे दैट यू आर टॉकिंग, बिकॉज़ यू डोंट हैव एनीथिंग टू सेल। वेरी इंपॉर्टेंट, या कुछ बेचना तो है नहीं है, सिर्फ बताना है। एंड एजुकेटर बन के वो जो आपको मिलता है ना, आई गॉट लॉट ऑफ ईमेल्स फॉर कैन वी डू इंटर्न्स, लॉट ऑफ चैलेंजेस व्हेन यू रन अ बिजनेस। ऑफ कोर्स, कितना हायर कर सकते हैं, कितना नहीं रख सकते हैं, चैलेंजेस होते हैं। बट लॉट एंड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, व्हेन आई गो फॉर कॉन्फ्रेंसेस, इवेंट्स, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कम्स टू मी, दे जो जिस तरीके से वो मिलते हैं ना, सो ऐसा यू फील सो प्राउड, एंड ऐसा लगता है कि यार यू हैव अचीव्ड समथिंग, यू कैन, मतलब यू कैन रीच समवेयर। वो पाथ इजी कर दिया सोशल मीडिया ने। वेरी गुड थॉट एक्चुअली। सो व्हेन यू हैव दिस थॉट एंड व्हेन यू हैव दिस ऑर्गेनिक रीच, मेरे को कोई ना तैयार होना, ना मेकअप करना, कुछ नहीं करना, पैंट भी गंदी है, शर्ट भी गंदी है, कोई जूते पहने हुए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यू टेक्निकली डूइंग अ साइट विजिट, समबडी इज डूइंग, होल्डिंग योर फोन। अगर मैं साइट विजिट पे जाके 3 वीडियोस बना लूं और वो 3 वीडियोस चल जाते हैं, तो अगर मैं बहुत ज्यादा तैयार होके मेकअप वेकअप करके आ जाऊं सामने, विल से यार व्हाट इज ही डूइंग। और आप वीडियो जब डालते हो ये सोच के नहीं डालते कि ये टाइमिंग पे डालना है या कुछ नहीं, बट देयर इज अ पीयर प्रेशर ऑफ सोशल मीडिया। ऑफ कोर्स द रीच, व्हाट आई अंडरस्टैंड, हैज टू बी ऑलवेज गुड। तो उसके लिए एक पीयर प्रेशर रहता है कि यार आज जाके आधा घंटा निकाल के ये वीडियो बना लो, या कोई, और सबसे बड़ी बात है कंटेंट चाहिए। रोज कंटेंट कहां से आएगा? एवरी डे यू हैव टू हैव कंटेंट। तो उसके लिए आपके पास मल्टीपल साइट्स होनी चाहिए, मल्टीपल कोई नया, हर बारी कोई इनोवेशन होनी चाहिए। सो मैं अपनी टीम को ये बोलता हूं, अगर तुम इनोवेशन नहीं करोगे तो मैं डालूंगा क्या? एंड लेट्स टॉक अबाउट your team now. How many people you are working for you? So there are a lot of people. We have a good team and good talent. I have a lot of seniors in my office. So developing a team and retaining them, give them a good growth and give them a mark that they are working for this organization is very important. Okay. उस टीम को ग्रो करना, उसको स्केल अप करना, उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना, that is my vision. So नंबर जितना भी हो, you have to have the quality, best quality team. So that is the vision. I would not say that, but most of the people in my company, they can open their own business. वो उनको all-rounder बनाया मैंने. Wow. Procurement, design. That much they are trained. तभी रिजल्ट आ रहा है. I am a businessman, right? I am a designer, but डिजाइन करने का टाइम तो मेरे को रात को मिलता है. मैं रात को सारे रेंडर्स चेक करता हूँ, क्योंकि दिन में जब आया, मैंने दिन में तो पूरा हमें अपना बिजनेस रन करना है, साइट पे भी जाना है। सो वो 3Ds, मल्टीपल साइट्स चल रही होती है, मल्टीपल चैलेंज होते हैं। रात को सारे रेंडर्स मेरे पास आते हैं, मैं उस पर अपने कमेंट्स देता हूँ, उस पर डिस्कशंस करता हूँ, जो भी होता है। रात को माई टीम इज एक्टिव ड्यूरिंग लेट आवर्स ऑल्सो। 12 बजे डिस्कशन हो रही है, 11 बजे डिस्कशन हो रही है, वीसी कर रहे हैं, फोन पे कर रहे हैं, वॉइस नोट्स पे कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे कर रहे हैं। दिस लॉट ऑफ प्रेशर। कई बार तो बच्चों के लिए टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। I know, I can understand. So you have peer pressure of running a business, then you have peer pressure of traveling. I took 16 flights last month. I know, I saw you. Same day travel. अभी इस वेदर में ट्रैवल करना नॉर्थ इंडिया में इज लाइक 2 घंटे फ्लाइट, सुबह की डिले हो जाती है, रात की डिले हो जाती है। So there are lot of challenges, lot of knee issues आ जाते हैं यार, अंडरस्टैंड कितना ट्रैवल करना पड़ता है। Then you have to go to China
चाइना, गोइंग टू चाइना इज अगेन अ चैलेंज कि आप वहां जाते हो, आप 4-5 दिन जब उस क्लाइंट के साथ होते हो तो आप बाकी काम को नहीं कर पाते हो। चाइना का मेरे को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है आपके साथ। मैंने लोगों को चाइना जाते देखा है, मैं नहीं गया हूँ कभी भी चाइना। आई बीन टू मिलान, पेरिस, अदर कंट्रीज। चाइना आप कैसे प्लान कर सकते हो, और चाइना में ऐसा क्या है जो लॉट ऑफ इंटीरियर डिजाइनर आर गोइंग, बिकॉज इंडिया आल्सो मेकिंग लॉट ऑफ फर्नीचर्स, ओके, दे आर वेरी वेरी गुड मैन्युफैक्चरर्स, बट चाइना में ऐसा क्या चीज है कि जो डेफिनेटली आपको वहां जाके लगता है कि हाँ यार दिस इज द बेस्ट। आई सॉ योर वन ऑफ योर रील, आई सॉ वेरी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, यू नो देयर वाज अ spaceship type something was there, so nobody is making in India. So I'll tell you the difference is ये प्रोसेस कैसे होता है? Most of these, पहली बात चाइना बहुत एक्सपेंसिव है, सस्ता नहीं है सस्ता, 100% नहीं है। हाँ। दूसरी बात वो वीडियोस नहीं लेने देते। ओके, तो मैं वीडियो कैसे लेता हूँ? मैं वो खरीदता हूँ चीजें जिनकी मैं वीडियो लेता हूँ। ओह वाओ, फॉर माय क्लाइंट्स। दैट्स एक्सपेंसिव वीडियो। सो नो, नॉट लाइक, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप एक स्टोर में जा रहे हो, आप आपको वीडियो लेने नहीं देगा, बोलेगा नो वीडियो अलाउड, राइट? हाउ विल यू टेक अ वीडियो? यू हैव टू बाय इट। ओके, when you buy products from there, they know that he's a genuine client. Okay, so you finish the transaction first, then do the transaction first, and plus अब ऐसा हो चुका है कि इतनी बारी जाता हूँ मैं, 2004 से जा रहा हूँ, सोचो कितना टाइम हो गया, तो they know me. But 2004 is a long time. बीच में हॉल्ट था जब हम थोड़े टाइम के लिए, जब कोविड आ गया बीच में, ऐसा आ गया, तो अभी हम लोगों को ज्यादा जाना पड़ता है। That's इंटरनेशनल हॉल्ट। प्लस एक प्लस पॉइंट, देखो इंडिया में सारा फर्नीचर बन रहा है, एंड मोर और लेस आई थिंक इंडिया विल बी वन ऑफ द लीडिंग फर्नीचर मैन्युफैक्चरर, बिकॉज सबने इतना अच्छा इंप्रोवाइज कर लिया अपने आप को कि आई डोंट फील लाइक गोइंग टू चाइना। बट चाइना जाने से बेनिफिट क्या है? क्लाइंट को 4 दिन में पूरे घर का फर्नीचर ले लेते हैं वो 5 दिन में, जो यहाँ पे उनको मंथ्स की डिवोशन देनी पड़ती है। ओके, एक तो वो पॉइंट हो गया। सेकंड, एक ही ग्लांस में उनको पूरी फर्नीचर मार्केट, पूरे सेक्शंस, डिफरेंट डिफरेंट चीजें दिख जाती हैं। ओके, एक वैरायटी दिख जाती है। तो यहाँ पे उनको डिफरेंट कंपटीशन इज टू मच इन चाइना। कंपटीशन देखो, एंड कंपेयरिंग इज आल्सो इजी। कंपटीशन भी है, चीजें भी हैं, बट प्रैक्टिकली क्या है, एक अब आप स्टोर पे जा रहे हो, आपको सारी चीजें अपने लेवल पे दिख रही है कि ये 1 लेवल है, 2 लेवल है, 3 लेवल है, यहाँ सारी चीजें एक साथ दिख जाएंगी। सो यू विल बी एबल टू एक्चुअली इमेजिन कि आपको क्या चीज चाहिए। ओके, इंडिया में क्या है, आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टोर्स पे जाके डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स देखने पड़ते हैं। आप किसी विजिट डिफरेंट फैक्ट्रीज आल्सो, डिफरेंट फैक्ट्रीज आल्सो, वो एक टास्क है जो हमें करना पड़ता है। बट आई थिंक दैट वो मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है, बिकॉज मैं 4 दिन में उस पूरे घर का, जो अगर 20,000 स्क्वायर फीट का घर है, उसके 5 दिन में सारा फर्नीचर ले आऊं, A to Z, everything, A to Z, most of the furniture, including paintings also sometime. कई बार टाइम एक्स्ट्रा तो ले आते हैं, लेकिन बट कंसर्न ये कि जो 4-5 दिन की एक्सरसाइज अगर मैं इंडिया करता हूँ तो मेरे को वो टाइम बहुत लगता है। Okay. But now my vision is just majorly focusing on Indian market, because they have mostly achieved the design lines. Yeah. Plus जो डिटेल्स इंडिया में डाल रहे हैं वो वहां पे भी नहीं डाल रहे हैं। Oh, really? वो इनोवेशन अभी कम कर रहे हैं, क्योंकि वो इंडिया वाले ज्यादा इनोवेशन कर रहे हैं। मार्बल इनलेज, मार्बल डिटेल, जो कारीगरी इंडिया के पास है अभी, और जिस अप्रोचेबल प्राइस में भी है। ऐसा नहीं है चाइना सस्ता है, चाइना बहुत महंगा है, तो इंडिया कंपैरेटिवली सस्ता है। कोई डिजाइन लाइंस हैं, मॉडर्न डिजाइन लाइंस हैं, जो चाइना में थोड़ी सी इकोनॉमिकल है। चाइना में एक प्रोडक्ट लाइन है जो बहुत सस्ती हो सकती है। यार जब आप एक शोरूम में जाके एक अच्छा सोफा सेट देखते हो, आपको अच्छा लगता है। जब आप वो एक साथ 100 पीसेस देखो ना, आपको लगेगा तो रेगुलर है। सो आई वाज इन दुबई विद अ क्लाइंट एंड वी वेंट टू शेख जायद रोड फॉर फर्नीचर सिलेक्शन। हमने काफी फर्नीचर शोरूम्स पे गए। क्लाइंट कहता है यार 3 घंटे हो गए, तेरे को एक भी चीज पसंद नहीं आती, क्या चक्कर है? मैंने ये जो डिजाइन है ना, मैं इतने देख चुका हूँ कि मेरे को लग रहा है ये 2022 में मैंने किसी के घर में लगाया था, ये 2023 में लगाया था। दिस कहता है मेरे घर में तो नहीं लगाया ना। मैंने यार ये लेकिन 2023 का डिजाइन है। इतना पुराना डिजाइन। सो सेम गोज विद चाइना ऑल्सो, कि यार क्लाइंट कहते हैं यार तू 2 दिन हो गए R&D कर रहे हैं, कुछ पसंद क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वो मैं लगा चुका हूँ या नहीं भी लगा चुका हूँ, बट वो मैंने देखा है 2 साल से। Agreed, very much. जब 2 साल पहले आपने एक डिजाइन देखा हुआ, आप आज के प्रोजेक्ट में उसको यूज कर सकते हो? नहीं कर पाओगे। आपकी अंदर से कॉन्शियसली अलाउ नहीं करेगी। यू विल ऑलवेज लुक फॉर समथिंग न्यू, देन यू गेट द न्यू। एंड अभी मेरे से इंसिडेंस क्या हुआ, क्लाइंट ने बोला मैं 3 दिन के लिए चाइना आ रहा हूँ, मैंने लेट्स गो टू चाइना। दूसरे क्लाइंट ने बोला तू चाइना, मैं भी आ रहा हूँ। मैंने आ जाओ। जब वो एक क्लाइंट जाएगा 3 दिन बाद, आप आ जाना। तीसरे क्लाइंट ने बोला तू चाइना, मैं भी आ रहा हूँ। तो 3 दिन के स्लैश पे मैं 12 दिन के लिए चाइना रुका। पहला क्लाइंट आता कहता है यार मेरे को सबसे अच्छा फर्नीचर चाहिए, सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट फर्नीचर दिलवा दे। मेरे पास जो बेस्ट सिलेक्शंस थी मैंने उसको दिलवा दी। दूसरा क्लाइंट आता कह रहा मेरे को सबसे अच्छा बेस्ट फर्नीचर दिला दे। मैंने अब कहां से लाऊं, सारा तो बेस्ट ले लिया, तो सेम रिपीट करूं तो मेरे लिए प्रॉब्लम। ना वीडियो डाल सकता हूं, ना कुछ कर सकता हूं। सो somehow प्लस माइनस करके ले लिया। And which city we are talking? कहां पे जाते हैं आप चाइना में? फोशान। yes. थर्ड क्लाइंट आया, थर्ड की भी सेम वर्डिंग, दिलाओ। अब कहां से दिलाऊं? कुछ समझ नहीं आ रहा। सो आई वाज ब्लैंक कि क्या करूं। देन आई रियलाइज कि एक बारी में 21 जने के साथ जाऊंगा। डिजाइन लाइंस, हमारा माइंड जोन होता है ना, वो फ्लैट हो जाता है।
Looking, imagine you going to a furniture market every day for 11 days लगातार. So you कुछ समझ ही नहीं आता. नई चीज सबके पास बजट्स हैं. अगर बजट्स नहीं है तो सबके पास अप्रोच है. इजी हो गया, डायरेक्ट फ्लाइट होती है. जाओ यहाँ से 6 घंटे में आप पहुंच जाओगे. Then furniture select करा, you have agent, they deliver at home. Very easy, just like that. But still, I say, trust Indian market. They are booming right now. Next 6 महीने में मेरे को ऐसा लगता है कि हो सकता है जरूरत ही ना पड़े. Yeah, there are a lot of big factories there. Big factories, amazing finishes they have achieved. Playing with lot of materials, customization आपके पास यहाँ पे बैठ के कराना जितना easy है ना, वो चाइना बैठ के कराना नहीं है. Any of your favorite furniture manufacturers from India you want to talk about? I don't want to take any name. Yeah, that's what because they have a lot of good furniture. Because you're the designer, you should not take anybody's so name. I would not take it on camera, but there are amazing interior designers I'm working with. Amazing furniture manufacturers I'm working. They have really good setups. They are delivering very very good products. Finishing ऐसी है कि मतलब see, it's not about finishing also, finesse also. It is about the details that you want to achieve. अगर आपको ये टेबल पे जो डिटेल्स दिख रही हैं ये अगर अचीव करनी है तो ये चाइना नहीं मिलेंगी आपको. यहाँ पे मैचिंग योर स्टाइल आल्सो. मैचिंग यहाँ पे लापिस अगर पत्थर बीच में इनले कराया हुआ है तो वो आपको यहाँ के कारीगरी आपके साथ बैठ के उसको अचीव कर पाएंगे. तो वहां नहीं मिल रहा. वहाँ मॉडर्न होम्स हैं, जाओ चाइना जाके ले आओ. मॉडर्न होम्स से ही जाओ ले. बट इफ यू वांट माय डिजाइन लाइंस, मैं वहां से भी 50% ही लेकर आता हूँ, 60% ही लेकर आता हूँ. ओके, दैट्स ऑल यू शॉपिंग. आई शॉप हियर. वो एक परसेप्शन ऐसा है चाइना वाला, क्योंकि वो वीडियोस वायरल हो जाती हैं तो ऐसा लगता है कि मैं चाइना ही रहता हूँ, इंडिया नहीं रहता. लेकिन तो ऐसा है नहीं. So let's talk about something new guidance, or let's talk about some new designers. You want to give any guidance? What you think about new designers coming up in the market? So for new designers, what I feel that उन लोगों को ना डिजाइन स्कूल्स जो भी पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज उससे बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हाँ, वहाँ पे कोई साइट विजिट्स वगैरह नहीं होती. आई थिंक आपको मॉनिटरी नहीं सोचना चाहिए. फर्स्ट थिंक दैट कोई भी छोटा सा भी प्रोजेक्ट मिले ना रेनोवेशन का, स्टार्ट डूइंग दैट. ओके, डू दैट प्रोजेक्ट. डोंट डायरेक्टली सीधा छक्का नहीं मारना है. राइट, जस्ट स्टार्ट विद लिटिल, थोड़ा डिफेंस खेल के ट्राई टू डिलीवर द बेस्ट दैट यू कैन डू विद दैट बजट विद द क्लाइंट. क्योंकि पहले छोटा प्रोजेक्ट ही मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा आपको सीधा किसी ने बड़ा फार्म हाउस दिया 25,000 स्क्वायर फीट का कि आप बना लो. अगर आपको 1 बेडरूम या 2 बेडरूम में मिलेंगे पहले उसको, लेकिन उसको कितना क्रिएटिवली आप अचीव कर पाते हो, उसमें क्या चैलेंजेस तो आएंगे, पहले उस पर फोकस करो. ट्रस्ट ये डिजाइन लाइन जो आपकी है उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करो. उसको कैसे मैनेज करते हो, कैसे भागा दौड़ी करके, कहाँ से कौन से छोटे वेंडर से बड़े वेंडर से बड़े. ऑब्वियसली आप फर्स्ट इनिशियली फैंसी स्टोर से फर्नीचर नहीं ले सकते, तो छोटे स्टोर से लेके उसको इतना अच्छा बनवाओ कि वो, तो वंस द डिजाइन लाइंस एंड डिलीवरीज आपको डिलीवर हो जाएंगी, ग्राउंड पे जितने चैलेंज, हर साइड पे जाके 500 कमियां निकालो. ओके, कमियों को मत छुपाओ. दैट इफ यू सी एनी चैलेंजेस कि आपको कुछ गलती लग रही है, उसको मार्क करो, ठीक करो, छुपाओ मत. कि क्लाइंट के साथ हम लोग परफेक्ट देने की कोशिश करो. अगर आपने उन गलतियों से सीख लिया, एक गलती एक भी बारी हो सकती है, दूसरी बारी गलती से ही होगी, थर्ड टाइम नहीं होगी. मेरी कंपनी मैंने स्टार्ट करी, मैं 10 में से 8 बारी गलती करता था, अब मैं 1 बारी करता हूँ. 100% परफेक्ट तो कोई नहीं होता. लेकिन अगर आप वो गलती से लर्न नहीं करोगे, दोबारा नहीं करनी गलती. एंड इन आवर इंडस्ट्री एक गलती कॉस्ट मनी, पैसे कॉस्ट करते हैं क्लाइंट को. अगर क्लाइंट को भी कॉस्ट करते हैं, क्लाइंट को थोड़ा सा भी आपने तोड़ के, चाहे वो 500 रुपए की कॉस्ट ही क्यों नहीं है, क्लाइंट को लगेगा इसने गलत करा है. सो गलतियों से आप जितना लर्न करोगे, दैट इज स्टार्ट स्मॉल, लर्न फ्रॉम एवरी स्मॉल मिस्टेक. गो टू साइट, सिट देयर, टेक योर लैपटॉप, वहीं पे बना लो. जो आपको कारीगर के साथ बैठ के जो नॉलेज मिलेगी ना, जो आपको, अब कई लोग कहते हैं हम डिजाइन कर रहे हैं, मैं इंटरव्यू लेता हूँ लोगों का, तो टैलेंट का, विच आर वेरी गुड टैलेंट, बट प्रैक्टिकली उनको परचेज नॉलेज नहीं है. ओके, मैंने बोला ये पत्थर, अच्छा मैं इंटरव्यू में मैंने पूछा, डू यू नो दिस स्टोन? कहता है यस सर वी नो दिस स्टोन, दिस इज दिस स्टोन. मैंने कहाँ से ओरिजिन हुआ? कहता है वो नहीं पता. मैंने चलो कोई बात नहीं, कहाँ से मिलेगा? कहता है सर हम तो इस स्टोर पे जाते हैं, इस स्टोर पे जाते हैं, वहां से दे लेते हैं. मैंने इसका मेन सप्लायर कौन है, कहाँ से आता है? कह रहे सर वो नहीं पता. मैंने अच्छा चलो ठीक है, कितनी प्राइस रेंज का है? कहता है वो तो सर को पता है, वो मेरे को नहीं पता. सो व्हाई इज इट सो दैट दीज इंटीरियर डिजाइनर्स आर नॉट केपेबल ऑफ ऑल ऑफ दिस नॉलेज? उनको प्रोक्योरमेंट की नॉलेज भी होनी चाहिए, उनको एग्जीक्यूशन की नॉलेज भी होनी चाहिए, कारीगर कैसे इनले करता है वो पता होना चाहिए. ये नहीं कि इनले 3D में डाल दिया और हो गया. सो जब तक आप साइड पे नहीं जाओगे, उसको चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, कौन सा केमिकल यूज कर रहा है ये भी पता होना चाहिए, कौन से केमिकल का रिजल्ट क्या है, उसके ऊपर क्या कोटिंग होनी चाहिए. एवरीथिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट. वो सिर्फ ग्राउंड पे ही आएगी, वो आपको कंप्यूटर पे बैठ के नहीं मिलेगी. एंड मार्केट जाके जब आप, अगर आपको सिलेक्शन के लिए मार्केट नहीं जाना, मार्केट जाओ, रेट नेगोशिएट भी करो.
यू शुड नो कि ये चीज 100 रुपए की है, ये चीज 500 रुपए की है, और क्यों है। उनसे नेगोशिएट करो, उन 500 वाले को कोशिश करो 300 में कैसे लाएगा, दूसरे को ढूंढो। दैट ऑल एक्सरसाइज विल इवेंचुअली हेल्प यू इन मेकिंग गेटिंग यू टू दैट लेवल। क्लाइंट को आप 100 रुपए की चीज 70 में दोगे ना, he'll be for you forever। वही चीज 100 वेरी मच एग्रीड। सो अगर उसको 100 रुपए की चीज आप 110 में दोगे, 120 में दोगे, he'll probably get to know कि यार ये तो इसका इंटरेस्ट ही नहीं है, या he's just wasting my money। पैसा तो सबको चुभता है। एंड क्लाइंट्स आर वेरी स्मार्ट नाउ। दिल्ली क्लाइंट्स आर द, आई थिंक इतना सिखा देते हैं वो आपको। दिल्ली इज अ वेरी कॉम्पिटिटिव मार्केट। यस यस। सो वो आपको इतना सिखा देते हैं कि आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आई वर्किंग पैन इंडिया, वहां पे क्लाइंट्स फिर दे अंडरस्टैंड द थिंग। दिल्ली क्लाइंट्स में इतना, actually it's not about the clients, the competition in Delhi is very high. Okay. The prices, the competition, the lot of vendors for every material। तो कौन सा वेंडर अच्छा है, कौन सा टाइम पे डिलीवरी देगा, और कौन सा गलती करेगा, कौन सा कुछ ना कुछ हेर फेर करेगा, तो आपको पता होना चाहिए। वो गलती करके ही आपको पता है कि यार इससे काम कराना है, इससे नहीं कराना है, ये लेट करेगा, ये करेगा जल्दी, इसकी फिनिशिंग ज्यादा अच्छी, इसकी फिनिशिंग ज्यादा अच्छी है, इसकी फिनिशिंग ज्यादा अच्छी नहीं है, तो वो कैसे आएगा। इसकी कॉस्ट बहुत ऊपर है, इसकी कॉस्ट बहुत कम है, ये मिडिल वाला है, ये बिल्कुल इस क्लाइंट के लिए परफेक्ट है। एक क्लाइंट ने बोला मेरे को बेस्ट घर चाहिए, कोई बजट का इशू नहीं है, तो उसको आप बेस्ट के पास लेके जाओगे। जिसने बोला मेरा बजट इकोनॉमिकल है, उसको आप सेकंड वाले के पास लेके जाओगे। यू हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ वेंडर्स आल्सो। It's a very good advice for young designers. So ये टीम एफर्ट कौन सा है, वेंडर्स एफर्ट कौन सा है, ये सब होना चाहिए। इंटीरियर डिजाइनर आपको 3D 2D बनाने से एक बहुत बड़े इंटीरियर डिजाइनर नहीं बन सकते हम लोग, जब तक हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करना नहीं जानते, और इम्प्लीमेंट इन द राइट प्राइस, right for the right client also. Okay, what is the role of photography in your business? Photography is I think it's actually enhances what we do. हम लोग जो काम करते हैं उसको और इतना अच्छा दिखा देता है वो, कि और हमारे को तो बेनिफिट मिलता ही मिलता है उस चीज का। So magazines, PR and everything, it is for I think it is equally important as how you design. आप जितना डिजाइन कर रहे हो, अगर वो आप पूरे वर्ल्ड को नहीं दिखाओगे, सो किसी भी तरीके की हो, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, यूट्यूब पे हो, या मैगजीन फोटोग्राफी हो, सो वो सारी, इवन अ सिंपल प्रेजेंटेशन इन लैपटॉप, सिंपल प्रेजेंटेशन इज वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे को कह रहे हो यू आर गेटिंग वायरल ऑन सोशल मीडिया, वो भी तो इट्स आल्सो पार्ट ऑफ वीडियो फोटो, वीडियोस एंड फोटोज, राइट। सो या, that is very important. Okay, what do you think about the design industry in next 10 years? It is going to boom. आपने एग्जांपल देता हूँ, आई थिंक इवन आई बिलीव सो इन इंडिया इज गोइंग टू बी। जब हम छोटे थे ना, तो मेरे ख्याल से 20 घरों में एक BMW होती थी, हाँ, या मर्सिडीज होती थी। यस यस यस। राइट नाउ हर घर में 2 हैं। व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज दे एक्सेप्टेड द फैक्ट दैट ये चीज इतने की आएगी। एंड अगेन आप रिटेल आउटलेट्स के अंदर मैक्सिमम इंटीरियर डिजाइनर से लोग जाके परचेज कर रहे हैं। उसका रीजन क्या है? यस, एग्रीड। क्योंकि एवरीवन इज बिजी, दे वांट अ प्रोफेशनल एडवाइस कि इससे करा लो। तो इंटीरियर, अब जैसे मैं अगेन जैसे किसी इवेंट पे जाता हूँ, वहां पे जब स्टूडेंट्स मिलने आते हैं, दिस वाज नॉट द अर्लियर स्टेज। पहले 15 साल पहले इतने स्टूडेंट्स नहीं थे जितने अभी स्टूडेंट्स हैं। सो द इंटीरियर डिजाइन इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, मार्क माय वर्ड्स, आज से बड़ी बात नहीं करता, 2 साल बाद ही एवरी हाउस विल बी गोइंग टू। पहले हमारे पेरेंट्स क्या करते थे, एक आर्किटेक्ट से साइन कराते थे और घर बना लेते थे अपने आप। सो नाउ एवरीवन हैज एन इंटीरियर डिजाइनर। ऐसा कोई घर ही नहीं बन रहा जिसके पास इंटीरियर डिजाइनर आर्किटेक्ट ना हो। Yeah, even the small societies also. Everywhere. Yeah. Small houses also. Small houses also. A lot of people are doing it. So interior design की demand इतनी बढ़ गई है, and people know that architect is different, interior designers are different. Yes, yes. Lighting designers is different, and they have accepted that fact कि ये खर्चा कर लेंगे तो हमारे को हमारी मर्जी का घर मिल जाएगा. And they have a different budget, of course. Budgets. See, आप किसी ना डिजाइनर को डिजाइन पे अगर फोकस करना है ना, उसको बजट मत बताओ. Never tell him the budget. Let him design. उसकी टीम जब डिजाइन बना के आएगी, you can do some material changes, you can do some selection changes. Let's say फैब्रिक की जगह वॉलपेपर पे हो जाए, तो आपको कॉस्ट मिल जाएगी, 1/10 प्राइस का हो जाएगा, लेकिन डिजाइन खराब नहीं होगा. तो वो सेकेंडरी करो. पहले लेट द डिजाइनर डिजाइन करने दो. उसकी जो फिलॉसफी है, जो उसका थॉट प्रोसेस है आपके घर के लिए, पहले उसको डिजाइन करने दो. उसको हैम्पर मत करो अपना बजट बता के कि कितना बजट है. Let him design. If you came to a designer, बोलो यार बना मेरा घर, और that project will come out to be a masterpiece. अब कैसे कंट्रोल करोगे, वो आपको कंट्रोल करना है. मार्केट में तो 2000 रुपए का पत्थर भी है, 500 रुपए का पत्थर भी है, वो आपको कंट्रोल करना है एज अ क्लाइंट.
आर्किटेक्ट तो आपको या डिजाइनर आपको वो बता देगा कि ये मेरी डिजाइन लाइन्स हैं, ऐसा अचीव करना है और उसके अंदर क्या ऑल्ट्रेशंस हैं। अब वीनियर 200 रुपये 500 रुपये का मत लगाओ, आप 100 रुपये का लगा लो। पत्थर आप महंगा मत लगाओ, बट ऐसा नहीं है उसकी उसमें अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी, उसमें भी फिनिशिंग अच्छी आएगी, बट वो बजट में तो आ जाएगा। पर एक बात है, इस पॉडकास्ट के बाद नॉट ओनली यंग डिजाइनर्स, जो सीनियर हैं वो भी थोड़ा सीखेंगे आपसे। मेरे से कुछ नहीं, सीखने वाला नहीं है। बहुत कुछ मैं आपने तो- बोला है जो बहुत लोग नहीं बोलते हैं, विच इज अ गुड थिंग। काफी लोग नहीं बोलते हैं बहुत सारी चीजें, विच इज वेरी वेरी गुड थिंग। ओके, इन लास्ट वी हैव a rapid fire. okay. It's not a I'm rapid very- fire, but I'm very like bad at it. Will you no, it's a very simple one. I will not. Rapid fire is a very old-fashioned word. It's a fun and quick. You can Yeah, say that. Yeah. Okay. Minimal or maximalism? Maximalism, Wood or stone? stone, Okay. Site work or design studio? Where you spend time? डिजाइन स्टूडियो, ये तो 50-50 है। Okay. हाँ, नहीं आप एक ही वर्ड में जवाब दो। ये 50-50 है। Okay. Indian materials or international materials? इंडियन मटेरियल्स, Okay. One city that inspire you most? India and international both. Tell me. इंडिया देखो, ऑब्वियसली जयपुर इज Jaipur, Udaipur, yeah. is something every corner has detail, and Jaipur is internationally lot of parts of Europe that I think पूरा यूरोप ही मेरे को तो अच्छा लगता है। Okay. मेरे को कॉन्क्रीट सिटीज ज़्यादा पसंद नहीं है, मेरे को वो ओल्ड आर्किटेक्चर, जैसे लिस्बन इज वन ऑफ माय फेवरेट एंड विल बी इन माय हार्ट फॉरएवर। वो लिस्बन जैसी सिटी मैंने नहीं देखी। Lisbon. वेरी हैप्पी प्लेस एंड वेरी हैप्पी आर्किटेक्ट। Lisbon is in the UK. इट्स इन पोर्चुगल। Portugal. Okay. Okay. One material you are excited right now. ब्रास एंड चांदी। Okay. Let's say Chandi. Say one word which is like most Brass. exciting. Brass. Okay. अचीवेबल है ना, चांदी थोड़ा वो ज्यादा रश कर रहा है ऊपर। Instagram or real life? रियल लाइफ ऑलवेज। Advice to any young designer in single line. गो टू द साइट एंड लर्न एवरीथिंग एट द साइट। लैपटॉप लेके वहां पे बैठो, सब कुछ आ जाएगा। Lovely. Okay. Thank you, Karan. Thank you so much. Great. It was lovely meeting you. Beautiful podcast. Chalo, nice. And a lot of insight, honestly speaking. Okay. Okay, sir. Thank you so much. All Thank right. you. Thank you, Atul. Thank you. Thank you.